Dear all, today I am going to discuss on a topic which is completely different from what I usually record and share with all of you. And the topic is never fall in love, always rise in love. Now you are wondering why sir is discussing on this particular topic. My dear friends, this is equally important to discuss on these taboo topics. Why? Because I have seen in my 12 years of experience in different colleges and universities, people used to young students who are hardly in their 17 or 18, ruining their life and sometimes losing their life because of these things. Yes. We are living in a hypocritical society where we don't want to discuss these things with the younger generation. No, that is not correct. We need to transfer the first-hand information to the younger people rather than they are going to collect the second-hand or third-hand experience and information from their counterparts. So let us discuss what is love. My dear friend, love is care plus respect. Now, you are thinking that ये respect word कहाँ से आ गया? अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसमें respect कहाँ है? care तो है. सर यही प्रॉब्लम है. care के साथ साथ respect का होना बहुत जरूरी है. If you don't respect an individual, then you are not in love with that person. So bring that respect. Give some space, personal space. Accepting the person the way he or she is love. No, we don't do that. We always try to find out the past of individuals. No, that is incorrect. Accept the person the way he or she is. That is love. Sir, love can also define as an arrangement where there is 100% dedication with 0% expectation. नहीं, आपके लिए नहीं. आप तो उल्टा करते हो. 100% expectation with 0% dedication. If you are doing that thing, it means it's not love. One more thing I wanted to discuss. Love is a positive vibe. It's a highly positive thing. We normally take this word in a negative connotation, which is wrong. If there is a love, there must be some positivity spread around that. Let us discuss on what is fall in love and what is rise in love. I want to quote example for both the situation. ऐसा है, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, यंग लोगों के बीच रहता हूँ, and I am very open with my audience, and so I let them open up with me, which is required. तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में गया, एक बच्चा आया, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, बाल वाल बिखरे हुए, एकदम टिपिकल देवदास सा लग रहा. भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, सर मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे? मैं बोला, अच्छा क्यों ढूंढ रहे थे भाई? बोला, सर आपसे कुछ बात कहनी है. अच्छा, नॉर्मली जब भी इस तरह की कोई केस होती है तो मैं समझ जाता हूं कि माजरा क्या है. तो मैंने थोड़ा उसको ओपन अप किया. मैं बोला, बताओ, ओपन योर हार्ट आउट. उसने बोला, सर वो छोड़ गई सर. उसने मना कर दिया सर. अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा. मैंने बोला, नो, दिस इज नॉट डन. ऐसे नहीं बात करते. अगले लाइन में he started crying. He got emotional. और ऐसा होता है. सर छोड़ गई सर.
सर मर जाऊंगा सर, अब ना जी पाऊंगा। मैं बोला अच्छा मरना है, चलो। पहाड़ों पे वो यूनिवर्सिटी थी, वहां खाई भी था। मैं उसको कंधे पे हाथ रख के ले गया और खाई पे ले जाके बोला एज पे, मरना है तो कूदो, अरे कूदो। वो मेरा शकल देख रहा, सर क्या कर रहे हो? अच्छा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो कूद जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर किसी को कूदना है, मरना है, तो राधेश्याम का वेट नहीं करेगा, किसी का वेट नहीं करेगा कि मैं मर जाऊं। सर वो नहीं कूदेगा। अच्छा आपको लग रहा होगा कि नहीं सर कहीं आप इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्फ्लुएंस कर दो और वो कूद जाता तो पाप लगता आपको। ना जी ना, अगर कूद भी जाता तो मुझे पाप नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से क्या प्यार करेगा। दोस्तों आज के बाद से इन योर रिलेशनशिप इफ समबडी इज सेइंग कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, आप समझ लेना, इफ ही और शी डोंट लव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इसका मतलब है कि वो आपसे भी प्यार नहीं करेगा। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव इज सेल्फ लव। आई हैव सीन पीपल, दे आर इन रिलेशनशिप and they are compromising with their own self-esteem to save their relationship। गलत। प्यार अपने सेल्फ एस्टीम के कॉस्ट पे नहीं, खुद का, खुद से प्यार बहुत जरूरी है। एंड दूसरी पार्टी के लिए भी जरूरी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर रहा आपसे प्यार नहीं करेगा, अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं कर रहा आपसे प्यार नहीं करेगा। ये पहचान है, ठीक है? वो सही में प्यार करने लायक है या नहीं, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वेयर देयर इज राइज इन लव। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में जाऊंगा वापस पीछे, वहां हमारे एक सीनियर हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2002 2003। और वो ही इज इन लव विद अ गर्ल, हिज बैचमेट। और उस जमाने में खुल्लम खुल्ला प्यार, मतलब दोनों हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन वो बिंदास थे और वो लाइब्रेरी में, क्लास में, कैंटीन में, सब जगह साथ दिखते थे। तो वेरी फेमस कपल ऑफ कॉलेज कैंपस। सब कुछ शानदार चल रहा था उनकी जिंदगी में। फिर फाइनल ईयर आया और नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज का फाइनल ईयर और फेयरवेल जो है वो इन चीजों के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है उनके साथ भी। बोथ ऑफ देम गॉट प्लेस्ड, नौकरी दोनों की लगी हुई है। लड़की की बैंगलोर लगी हुई है, लड़के की दिल्ली में लगी हुई है कंपनी में। लड़की आती है, लड़के को बोलती है कि देखो भाई, घर वालों से तो मेरी बातचीत हुई है कि आगे की कहानी जो है हमारी, कॉलेज तक तो बढ़िया था, लेकिन आगे की कहानी तभी बनेगी, शादी वादी तभी हो पाएगा अगर तुम आईएएस बनोगे। घर वालों ने तो बोल दिया कि भाई आईएएस से करेंगे तुम्हारी शादी। अच्छा आपको कहीं लगे कि ये फिल्म की स्टोरी है, तो नहीं है, ये हकीकत की बात है, सच्चाई है ये। सर लड़का बड़ा परेशान होता है, लेकिन he was really in love, right? बोलता है कोई बात नहीं है, let me try for this thing as well। लड़की जाती है अपने बैंगलोर वाले कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए। भाई अब कहीं नौकरी ज्वाइन नहीं करता है, यही मुखर्जी नगर में आता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? इट्स मदर ऑफ ऑल कंपटीशन। फिर भी वो जम के पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है। पहला अटेम्प्ट देता है, नहीं होता है उसका सिलेक्शन। कोई नहीं, वो दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान लड़की का यूएस से एक प्रोजेक्ट आ जाता है, तो वो यूएस चले जाती है। भाई हाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट की खूब मेहनत करता है और फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट में भाई क्रैक करता है सिविल सर्विसेज विद द फ्लाइंग कलर्स। ही गॉट 48 रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।
and eventually he is going to become an IAS official. अच्छा, इसी दौरान यूएस में उस लड़की को कोई और मिल जाता है, और सिर्फ मिल ही नहीं जाता, वो उससे शादी भी कर लेती है. So what? भाई अपना आईएएस बन जाता है. This is called a rise in love. अब उसकी शादी हो गई है, बच्चे भी है, हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहा है, मैरिड लाइफ जी रहा है. दिस इज कॉल्ड राइज इन लव. और आप, किसी ने मना कर दिया, किसी ने छोड़ दिया, आप या तो देवदास बन जाते हो, या सुसाइड करने की सोचते हो, अपनी लाइफ को रियून करने की सोचते हो. दैट इज कॉल्ड फॉल इन लव. सो माय डियर फ्रेंड, my humble request and suggestion to all of you, always try to rise in love rather than falling in love. Thank you. Thanks a lot.